Good morning, students. Hello. Am I audible, guys? Hello. Am I audible? Yes, Please. ma'am. Good morning, ma'am. Yeah. Good morning. Good morning. Guys, I hope you remember that you have to log in with laptop. As Yes, in the ma'am. morning, we are going to solve few problems. Even if you are traveling, I know few people attend the lecture while traveling also. I know they are not able to log in from the laptop, but still they can attend the lecture. They can pay the attention. And once I send the Excel sheet, you can cope up with the new learnings from the chapter. Okay, guys. Now let's begin. So basically today we are going to start with the problem number 1. प्रॉब्लम नंबर 3 हमने कंप्लीट किया था ना. Yes, I do remember we have completed problem number 3. Now let's begin with the problem number 1. Even we have discussed the adjustments of the problem number 1 also, because we have underlined the interest charge, depreciation, plant and machinery, drawings, and the bad debts. Now this is a time to start actually solving the problem. So let's begin. As usual, what we are going to do, we are going to prepare the format first for problem number 1. So write particulars, amount, interim amount, and then amount final. Copy this, as P&L has 2 sides. Name it as profit and loss account. Also prepare Redis to Gaudy. The balance sheet. मैम हमने एडजस्टमेंट बाकी थे ना सिर्फ हमारे फर्स्ट के. नहीं, we are going to now post it as well as complete the adjustment, क्योंकि हमने पहला प्रॉब्लम एक्चुअली बेटा सॉल्व किया है. We have solved it and also we have tallied it, but today we are going to solve it once again along with the adjustment. So you Okay. can easily compare कि जब हम adjustment नहीं करते, मतलब हाँ. accountant भूल गया था, कुछ एडजस्टमेंट है, उसने ऐसा ही ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट लिख दिया. So what is the size of your business? And now, after giving the effects of adjustments, then what is the size of your business and how adjustment matters? हमें comparative analysis करना है after solving the problem once again. Solving problem. Okay मैम. आपको with adjustment ही problem solve करना है. So you should तुम्ही understand. जा येते मला वाटलं आलीस. नाही मी ते ओके. सो एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो विथ एडजस्टमेंट ही करना है. सो आज आपको तुरंत पता चलेगा कि हाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम.
As we are aware, we have already underlined the items which we need to enter, in the interim column. So shall we start now? The first item, I hope you are having the booklet also with you. The first item is a sales. Am I right? Hello. कहाँ पे लिखना है सेल्स बताओ. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट, करेक्ट. लिख दीजिए सेल्स. बट हमें पता है बहुत बार सेल्स को सेल्स रिटर्न भी रहते हैं. So let's keep it in the inner column. Let's write 3 lakhs into the inner column only. Okay. Next is a plant and machinery. But in the adjustment itself, we know there is an adjustment on plant and machinery of depreciation. So, कहाँ पे लिखना है plant and machinery? Asset side, but inner column depreciation adjustment है. What is the value? 1,50,000. नेक्स्ट कौन सा आइटम है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस. कोई एडजस्टमेंट है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस को? 20,000. इफ वी गो थ्रू द एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट, so we can directly write it on the debit side of P&L account, but not on the upper side, on the lower side, as it is directly not involved in the manufacturing thing. What is the value? 20,000. Safely we can write it into the outer column. What is next? Sales return. Already हमने जगह बनाई थी sales return के लिए. Let's write it in the inner column mentioning sales return. Final amount I give 2,70,000. Are you done till the sales return? Yes. Yes. Okay. Next है freight. और freight हम लिखते हैं ट्रेडिंग डेबिट को, लेकिन मुझे पता है it start with the opening stock. So let's keep the space for opening stock. Then we naturally write purchases. But purchases से भी हम माइनस करते हैं परचेस रिटर्न, और उसके बाद आएंगे बाकी के आइटम्स. तो अभी है फ्रेट. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रेट? एडजस्टमेंट नहीं है कुछ, बाहर के कॉलम में लिख सकते हैं 4,000. ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेसेस लिखे, उसमें से परचेस रिटर्न लेस कर दिए, एंड देन वी हैव रिटर्न फ्रेट, और वो भी हमने आउटर कॉलम में लिख दिया. नेक्स्ट है अकाउंट्स रिसीवेबल. जब हमने पहली बार ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द अदर नेम्स फॉर द डेटर्स, और वहां पे हमने सीखा था कि अकाउंट्स रिसीवेबल इज नथिंग बट द डेटर्स. बट यहाँ पे डेटर्स को एडजस्टमेंट है क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट इज गिवन. सो डेफिनेटली वी विल राइट the account receivables of 70,000 on the asset side only, but the inner column. Plant and machinery को भी adjustment है, इसलिए हमने inner column में वो लिख दिया. Accounts receivable 70,000 के हैं. लेकिन एडजस्टमेंट है इसलिए हम इनर कॉलम में लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट इज ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000. व्हेन वी वर राइटिंग द फ्रेट, हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह बना के रखी थी. 1,20,000 लिख दीजिए. उसके बाद है परचेसेस.
परचेसेस की भी जगह ऑलरेडी बनाई है, बट परचेस रिटर्न्स भी हो सकते हैं, तो वी विल राइट परचेसेस इनटू द इनर कॉलम, कॉलिंग इट एज 2,30,000. यहाँ तक हो गया बच्चों आपका? हेलो. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. देन डिस्काउंट पेड, मतलब ये हमारा एक्सपेंडिचर है. नो एडजस्टमेंट, सो रेंट के बाद में लिख दीजिएगा डिस्काउंट विच इज वैल्यूइंग टू 5,000. उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, लेकिन इंटरेस्ट इज एन आउटस्टैंडिंग, ऐसा एडजस्टमेंट है. 10,000 का इंटरेस्ट हमें पे करना था, लेकिन पे नहीं किया. कितना पे किया? सिर्फ 5,000 का किया, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में आ गया. Therefore, there is an adjustment on interest on bank loan, so हम लिखेंगे इनर कॉलम में अमाउंटिंग टू 5,000. डन. यहाँ तक हो गया आपका. एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं एक जगह मार्क, एक लाइन ब्लैंक छोड़ रही हूँ, मार्क कर रही हूँ. डन. यहाँ तक हो गया. Yes, ma'am. ओके. देन वी हैव सैलरीज. सैलरीज को कुछ एडजस्टमेंट है बेटा, प्रॉब्लम में नहीं है, so we can write the salary of 70,000 into the outer column. P&L account, salaries, no adjustment, simply we can write into the outer column as 70,000. Then cash in hand 5,000, जो हम asset में लिखते हैं, you are very much well versed with it. No adjustment for cash in hand. We can safely write it into the outer column 5,000. Done. यहाँ तक हो गया आपका? Yes, ma'am. Okay. Then we are having the purchase returns of 10,000, Yes, जो ma'am. हमने already लिख के लिया है 10,000. Now we will deduct the purchase return from actual purchases, and we are having the net purchases of 2,20,000. Done, right? अब उसके बाद there is a bank loan. बैंक लोन ऑफ 1,80,000. लाइबिलिटी में हमें पता है पहले हम कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद अगर कुछ ड्राइंग्स है तो वो ड्राइंग्स लेस करते हैं, एंड देन वी ऐड और लेस प्रॉफिट या लॉस. अगर प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो लेस होगा. उसके बाद हम लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज लिखना शुरू करते हैं. हियर we are having the bank loan, and how much is the bank loan? 1,80,000. बैंक लोन को कोई एडजस्टमेंट नहीं है, we will write bank loan 1,80,000. Then they have given the information about the capital of 1,81,500. लेकिन there are lots of adjustments to the capital, so we will write it into the inner column 1,81,500. यहाँ तक हो गया बच्चों? Ma'am, Yes, ma'am. just a minute. Ma'am, just give me 5 seconds here. नो प्रॉब्लम बेटा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ हर बार. यू कैन पॉज मी, डोंट वरी. Ma'am, done. Shall we start posting beta? Yes, ma'am. Okay, great. And feel free to stop me, क्योंकि अगर आपका नहीं हुआ है and if you don't stop me,
वो आपका पीछे रह जाएगा एंड आगे के एडजस्टमेंट आपको नहीं समझेंगे. द वे नेहा स्टॉप्स मी, द वे दीपाली स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप मी. नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, नेक्स्ट. कैपिटल हो गया हमारा एंट्री करके. नाउ वी विल लुक फॉर अकाउंट्स पेएबल. When we were solving again the first problem for the first time, accounts payable is nothing but the creditors. So creditors को कोई भी adjustment नहीं है, इसलिए accounts payables भी liability side में हम लिख देंगे, लेकिन outer column में. And what is the amount? It's a 40,000. outer column में लिख दीजिए अकाउंट्स पेएबल 40,000. हो गया बेटा आपका सबका. इमीडिएटली उसके नीचे है बिल्स पेएबल, सेम ऑन द लाइबिलिटी साइड 26,500. बिल्स पेएबल 26,500. ये होने के बाद legal charges 1,000. It's your expenditure, so we will write it on the debit side of P&L as legal charge 2, which is amounting to 1,000. Then we are having the general expenses. We need to write it on the same side. General expenses, which are amounting to 8,000. No adjustment at all. And finally, I guess मैं थोड़ा fast हो गई. Please let me know once you are done. बिल्स पेएबल के बाद हमने लिखा डेबिट साइड P&L में लीगल चार्ज 1,000 और जनरल एक्सपेंसेस 8,000. Done, ma'am. Done? Okay. Then last item, cash at bank 20,000 on the asset side. No adjustment. Let's write cash at bank. आउटर कॉलम में लिख देते हैं 20,000. So यहाँ पे तो guys we are done with the entering all the elements of the trial balance. But when you are solving the question in the exam itself, don't make an hurry to solve the adjustments also. एक बार आपका पूरा trial balance enter होने के बाद, what you should do, you should check again each and every item. So can I have Neha? Neha, are you there? Yes, ma'am. तो अब हम क्या करेंगे नेहा? You will tell me the every element of trial balance along with the amount and we will check it. Okay? Okay, ma'am. मतलब हमने एंट्री सही की है ना, अमाउंट 20,000 की जगह हमने 2 लाख नहीं डाले ना, ये चेक करेंगे as it is expected in exam. क्योंकि अगर आपने 2 लाख की जगह 20,000 डाल दे तो आपकी बैलेंस शीट मैच होगी कभी? और गलती से हो सकता है ये कि जल्दी जल्दी में एक जीरो आपने एक्स्ट्रा का लगा दिया, लेकिन या एक जीरो आपने कम लगा दिया, योर बैलेंस शीट विल नॉट मैच. तो बिफोर गोइंग फॉर एडजस्टमेंट एक बार हम ट्रायल बैलेंस के एंट्रीज चेक करेंगे. तो नेहा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, आप ट्रायल बैलेंस के फर्स्ट आइटम से लेकर मुझे उसका नाम बताओगे, एलिमेंट बताओगे और मैं जो एंट्री की है वहां पे चेक करूंगी. क्लियर नेहा? हेलो?
नेहा, आर यू देयर? शायद there is a connectivity issue. Who else is there who can read the elements of trial balance? या मैम दीपाली है. चलो स्टार्ट करते हैं. P&L अकाउंट फर्स्ट. नहीं, आपको क्या करना है, आपको जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम पर आपको एक एक आइटम मुझे बताना है. मतलब यू विल स्टार्ट विद द सेल्स. तो आप मुझे बताओगे कि मैम सेल्स 3 लाख, चेक करो ओके, सॉल्यूशन में. बात समझ में आ गई आपको? ठीक है. हाँ, चलो वन बाय वन. पहला है सेल्स 3 लाख. चलो ठीक ठीक किया है हमने. प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000. करेक्ट. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 20,000. लेट मी चेक. यस, इट इज 20,000. सेल्स रिटर्न 30,000. या सेल्स रिटर्न कर दिया और बाहर 2,70,000 भी लिख दिए. करेक्ट. नेक्स्ट. Yes. Freight 4,000. डन. Accounts receivable 70,000. एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख दिया. डन. Opening inventory 1,20,000. डन. Purchases 2,30,000. इनर कॉलम में लिख दिया. सही बात. आगे. Discount paid 5,000. डन. Interest on bank 5,000. एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम में लिख दिया. डन. Salaries 70,000. डन. Cash in hand 5,000. कैश इन हैंड 5,000. डन. Purchase return 10,000. डन. Bank loan 1,80,000. कर दिया. Capital 1,81,500. करेक्ट. Accounts payable 40,000. कर दिया. Bills payable 26,500. सही. एंटर किया. Legal charges 1,000. डन. General expenses 8,000. डन. Cash at bank 20,000. So this was the last item. Yes. Yes. So एक तो चीज हो गई, टिक मार्क हो गई कि वी हैव एंटर द ट्रायल बैलेंस विद द 100% एक्यूरेसी. ये चेक करने के बाद नाउ दिस इज अ टाइम टू गो फॉर द एंटरिंग एडजस्टमेंट. मतलब 2 इफेक्ट्स हमें देने पड़ते हैं एडजस्टमेंट के. सो नाउ वी विल स्टार्ट गिविंग द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स. पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2005 was costing 1,25,000, whereas its market value was 1,60,000. I guess we have spent a good amount of time in understanding this. और तब मैंने आपको बताया भी था कि जिस वक्त आपको कॉस्ट और प्राइस ऐसे 2 वैल्यूज दिए जाते हैं, या मार्केट वैल्यू जिसको हम कहते हैं, in such scenario AS2 suggests that value the stock at cost or market, whichever is Less. yes, lower or less. So in the same way, what we will do, we will consider the stock value as 1,25,000 as it is less than 1,60,000. And what are the 2 effects of closing stock? बच्चों बताओ, what are the 2 effects? क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हमने क्या पढ़े थे? P&L account debit side. P&L अकाउंट क्रेडिट. P&L account credit side and balance sheet asset side. लिख दीजिए बेटा. बाय क्लोजिंग स्टॉक P&L अकाउंट क्रेडिट साइड 1,25,000. आपको असेट साइड में भी लिखना है
क्लोजिंग स्टॉक. मैम हाँ, वो मार्केट वैल्यू का फिर से बताओ ना एक बार. सी ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है which can be sold in the market at the sale price, and it is having some selling price. इसलिए वो कह रहे हैं कि if we have sold it in the market we can fetch it 1,60,000, but the cost of manufacturing is 1,25,000. Both things are correct. What is the difference between these two? The difference is only of the profit. जो हम इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स में सीख रहे हैं, it's only about the profit. So we referred accounting standard 2 which deals with the valuation of costing and which says we should value the cost, we should value the stock at market or cost, whichever is less. और इसमें यहाँ पे कॉस्ट कम है इसलिए वी आर टेकिंग value of closing stock as 1,25,000 instead of 1,60,000. 60,000. Okay, so Okay. आप लिख दीजिए आउटर कॉलम में 1,25,000. ये एडजस्टमेंट हो गया. एक इफेक्ट जाएगा असेट साइड में, दूसरा इफेक्ट जाएगा P&L क्रेडिट साइड में. डन. Yes, ma'am. Okay, now next है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाज आउटस्टैंडिंग. पे करना था लेकिन किया नहीं. We are still liable to pay someone. So what will happen? First effect is we need to show it on the liability as we are liable to pay. और ये 15 या 10,000 हमारा एक्सपेंडिचर है. तो सेकंड इफेक्ट इज P&L अकाउंट डेबिट. लेकिन P&L अकाउंट डेबिट में ऑलरेडी जो हमने इंटरेस्ट पे किया है 5,000 का वो हमने लिखा है. इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें ही हम ये 10,000 ऐड करके दिखाएंगे और दूसरा इफेक्ट देंगे लाइबिलिटी साइड में. चलो हम इफेक्ट देते हैं ऑन द फर्स्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड. ऐड करेंगे which is interest on, या इसको एक्चुअली हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट which is amounting to 10,000. So final interest is 15,000 and out of 15,000 we are not paid yet 10,000. इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये 10,000. यहाँ तक हो गया बच्चों आपका. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का हमें एडजस्टमेंट ये करना है. Just let me know once you are done. Yes, ma'am. Done. Okay. Now what is the next adjustment? Depreciate plant and machinery at 10%. Now this is a very simple adjustment that everyone is aware. Deduct from asset as the value, as the 15,000. value of asset is declining. Just give me a moment. So here we will deduct the depreciation at 10%. 15. Yes.
which is coming to 15,000. Outer column में लिख देंगे net value of asset 1,35,000. And on the debit side, we will write to depreciation, which is 15,000. Are you done with the adjustment of P&L account? Yes, ma'am. चलो अभी next क्या है? The owner of the ABC and the company has withdrawn the goods worth rupees 20,000 for personal use. मतलब it's a adjustment of drawing. What are the two effects of drawing? हमने drawing बहुत बार किया है. क्या effects है drawing के? चलो बताइए जरा मुझे. P&L credit side deduct from capital. Asset. नहीं बरोबर बोलतीये. Liability. हाँ. घाबरू नकोस. Guys, असं एक्झाम मध्ये किंवा ओरल मध्ये असे करतात ना लोक की इवन इफ यू गिव द राइट आंसर दे विल जस्ट स्टेयर एट यू और उसी टाइम आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल नीचे कर देते हो एंड यू जस्ट फॉल इनटू द ट्रैप. लेकिन अगर आपको पता है कि यू आर करेक्ट, कामली आप कह सकते हो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग यही एडजस्टमेंट के इफेक्ट है. सो बेटा एक्चुअली यू आर करेक्ट, कैपिटल में से हमें लेस करना है. एंड व्हाट इज द वैल्यू? इट्स अ 20,000. जल्दबाजी में तुरंत कैपिटल आउटर कॉलम में मत लेके जाइए क्योंकि वी नीड टू ऐड और लेस प्रॉफिट और लॉस. सेकेंड इफेक्ट हम देंगे बाय ड्रॉइंग्स. which is amounting to 20,000. Are you done with this? Hello. Ma'am, Neha here. Huh? Can you Neha. hear me? Yeah, now I can hear you. Yes. Ma'am, ये depreciation वाला आप एक बार और because I lost in between. वो समझ में आया हमें आपके Connectivity issue. हुआ था. So depreciation at the rate 10%. Yes. 1,50,000 Yeah. का आपका प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें से Yes. हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. कैसे निकाला? 1,50,000 into 10% comes to 15,000. So outer column में आपके आएंगे 1,35,000. ये होगा फर्स्ट इफेक्ट. Okay. ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट. लिख दिया या एंटर कर दिया आपने? Now this is a time Yes. to go for the second effect. Okay. जो यहाँ पे हमने एंटर किया है डेप्रिसिएशन 15,000 P&L डेबिट साइड में. डन? Yes, ma'am, done. Okay. Now let's speak about the last adjustment entry, which is a provision for bad debts, 500 rupees. यहाँ पे we are having the debtors of 70,000. सही बात है. उसमें से अभी हम bad debts less करेंगे. And how much they are? Of rupees 500. डिडक्ट कीजिए. आउटर कॉलम में फाइनल अकाउंट्स रिसीवेबल आएंगे 69,500 एंड देन P&L account debit side 2 bad debts which is amounting to 500 again. यहाँ तक हो गया बच्चों? हेलो. Yes, ma'am. ओके. नाउ अरे हाँ, मुझे एक और बात कहनी थी आपसे कि टाइम टेबल में कल को आपको छुट्टी है, लेकिन आई एम प्लानिंग टू कीप 2 अकाउंट सेशन इन द मॉर्निंग ओनली, सो वी कैन सॉल्व द एडवांस प्रॉब्लम्स ऑफ द फाइनल अकाउंट्स. और अगर
प्रॉब्लम एक्सटेंड भी हुआ तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 लेक्चर्स में ले रही हूँ बैक टू बैक. So is that fine to you? Hello, Okay, ma'am. is that fine for you? और मॉर्निंग में ही लिखेंगे लेंगे तो दिन भर आप अपना हॉलीडे एंजॉय कर सकते हो. तो शाम को हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आज फिर से, लेकिन कल सुबह वी विल सॉल्व एटलीस्ट बिग 2 प्रॉब्लम्स, कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि यू कैन सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि जल्द से जल्द आप इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे. are you listening to me? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, guys. Thank you for your cooperation. And tomorrow is a very important day for all Maharashtrians. So definitely, the king will be happy with us if we are really working hard, because that is the life motto. Am I right? That is a great tribute if we are working hard for our dream. That's way I have understand the king, the great king Shivaji Maharaj, that work hard for your dreams. Chalo, shall we go ahead? Hello. Yes, ma'am. ब्रेकफास्ट नहीं हुआ इसका मतलब भूख लगी है जोरों की. You can have a breakfast while learning, but pay attention. क्योंकि भूखे पेट ना कोई भी आए ना, बड़ा से बड़ा टीचर, फिर भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा. So don't sit with the empty stomach. अगर आपका पेट खाली है तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, हमेशा याद रखना. इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक क्या कहते हैं उसको, एक एक्टिविटी थी एजुकेशन के लिए. उसमें भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इफ द स्कूल चिल्ड्रन इज कमिंग विद द एम्प्टी स्टमक, ही कैन नॉट लर्न. इसलिए आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, सिविक्स में वगैरह वगैरह, कि there is one activity called midday meal program. स्कूल गोइंग बच्चे को दोपहर का खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. That is the reason behind this midday meal program. If you travel into the remote areas, you will understand कि सिर्फ मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ, इसके लिए छोटे छोटे बच्चे 10-10 किलोमीटर चल के आते हैं विदाउट हैविंग एनी डब्बा विद देम, क्योंकि माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं होते एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द एजुकेशन. बट ये बच्चे आते हैं, तो ये बच्चे ड्रॉप ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट मिड डे मील प्रोग्राम चलाती है. इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल, यू कैन विजिट टू द अक्षय पात्र योजना. Please visit the website of Akshay Patra Yojana and you will understand how much work is going for the school going children who are coming to the school with the hungry stomach just for learning. जाते जाते मैंने आपको एक बहुत अच्छा काम बताया जो लोग कर रहे हैं. So please visit the website of Akshay Patra Yojana. It's a huge work, huge work. Now let's talk about the second effect of the bad debts. We have also given the second effect of bad debt. So here itself we are done with all the adjustments. अभी आप मुझे बताइए अभी क्या करना पड़ेगा हमें. Now we need to balance every account and we have to transfer the profit and loss to the balance sheet. तो पहले हम ये जो P&L का अपर पार्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड की टोटल लेते हैं विच इज 3,44,000. क्रेडिट साइड की टोटल है विच इज 4,15,000. मुझे कहाँ पे समझ में आ रही है टोटल? जब मैं सिलेक्ट करती हूँ एक्सेल में कहीं भी, तो गाइस यहाँ पे टोटल आती है सम 4,15,000. So definitely
द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, इसलिए मैं क्रेडिट साइड की टोटल दोनों जगह पे लिख रही हूँ. एंड नाउ आई विल कैलकुलेट टू मैडम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट. कैसे निकालेंगे बेटा? क्रेडिट साइड की टोटल माइनस डेबिट साइड की टोटल. 71,000 का प्रॉफिट आया या नहीं आया? ग्रॉस प्रॉफिट. आया. यस. यहाँ पे कुछ गलत हुआ क्या? नहीं. Now we will transfer the gross profit onto the credit side. Stating it as by gross profit as 71,000. राइट. अभी देखने पर ही पता चल रहा है कि डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट इज ग्रेटर, इट्स 1,34,500 और क्रेडिट साइड इज हैविंग ओनली 71,000. मतलब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपके इनकम के ऊपर है. तो डेफिनेटली आई विल राइट द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द both sides, and here I will calculate by net loss. कितना आया आपका नेट लॉस? 63,500 का. यहाँ तक आ गए बच्चों आप लोग? ग्रॉस प्रॉफिट नेट लॉस निकाला. मैं थोड़ा रिड्यूस कर रही हूँ साइज कि आपको अभी सब एक ही स्क्रीन में दिखाई दे. इज इट विजिबल टू यू? Yes, ma'am. अभी तो आया नेट लॉस. सही बात है. तो हम वो नेट लॉस प्रॉफिट में से, आई मीन कैपिटल में से लेस करेंगे. नाउ आई नो देयर इज अ लॉस, तो मैं क्या करूंगी? साइन माइनस लिख दूंगी, माइनस नेट लॉस. सही बात है. यहाँ तक हो गया आपका? चलो अभी आगे लिख देते हैं. कैपिटल माइनस, Ma'am, just वो I'll wait. Complete it. yeah. I finished it till by net loss. उसके बाद हाँ. ओके. लाइबिलिटी साइड में लिख दिया नेट लॉस. ये हमने नेट लॉस यहाँ से माइनस वो मैं ग्रॉस प्रॉफिट तक आई हैव रिटन. ग्रॉस प्रॉफिट निकाला. ग्रॉस प्रॉफिट P&L क्रेडिट में लिख दिया. हाँ. नाउ हियर वी नो दैट डेबिट साइड इज ग्रेटर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल देखिए रेड हाइलाइटर में दिखाई है 1,34,500. इसका मतलब यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू द ग्रॉस प्रॉफिट. सही बात है ना? तो इसीलिए यहाँ पे हमें हुआ नेट लॉस ऑफ 63,500. अब अभी ये लॉस है तो कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. यहाँ तक हो गया बच्चों सबका? हेलो जी, हो गया क्या? Yes, ma'am. Okay, now let's calculate the final value of capital. Capital ड्राइंग्स को भी माइनस तो माइनस कर दिया, नेट लॉस भी माइनस तो उसको भी माइनस कर दिया. So final value of capital is 98,000. Now let's take the total. 354,500. अरे हाँ, पूरी टोटल लेते हैं 354,500. Here our problem with adjustment has been completed. Guys, and if you notice
even I am explaining so many things with you, we have completed the problem within 50 minutes. अभी तो हमें 50 मिनट लग रहे हैं, लेकिन हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि we will be able to solve this problem in 20 minutes. Yes, that is a target कि हमारा प्रॉब्लम कितने मिनट्स में खत्म होना चाहिए, 20 मिनट्स में. और ये हो सकता है मैडम? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए. इसलिए मैं कल का सेशन अकाउंट्स का रख रही हूँ कि और 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको भेजूंगी विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द बुकलेट, लेकिन हम वो प्रैक्टिस करेंगे. समझ में आई बात? क्योंकि दिस इज अ कैश काउ. कैश काउ का क्या मतलब है? जो आपको 100% मार्क्स देगी अगर आपका एंट्री 100% सही है तो. मतलब इट्स नॉट लाइक द थियोरेटिकल पेपर्स कि कितना भी लिख मार्क्स कट ही जाते हैं. बट दिस इज लाइक अ मैथमेटिक्स. इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्ट, एक भी मार्क नहीं जाएगा आपका. बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? हेलो. Yes, ma'am. ओके. नाउ I am giving you a task. We have last 5 minutes. अभी आप कंपेयर करोगे लाइबिलिटी साइड ऑफ प्रॉब्लम विद द एडजस्टमेंट, और पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था विदाउट एडजस्टमेंट. सेम यू विल कंपेयर द असेट साइड विद द एडजस्टमेंट, और जो प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व किया था विदाउट एडजस्टमेंट, एंड यू विल नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. तो कल हम पहले आपके ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द 2 मोर एडिशनल प्रॉब्लम्स. चलो नोट्स लिखना शुरू करो. प्लीज स्टार्ट टेकिंग द नोट्स. प्लीज कंपेयर. आपके पास 5 मिनट है. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स मोर. प्लीज स्टार्ट कंपेयरिंग, प्लीज स्टार्ट ऑब्जर्विंग. क्या डिफरेंस आपको समझ में आया है वो भी जरा लिखिए. मैंने जानबूझकर अभी का प्रॉब्लम आपके सामने खोल कर रखा है. यू कैन ओपन द फर्स्ट प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट ऑन योर लैपटॉप एंड कंपेयर द बोथ स्क्रीन्स. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. मेरा स्क्रीन तो आपके सामने आ ही रहा है. आप अपने एंड पे प्रीवियस वर्जन ओपन करो और कंपैरिजन करो एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. So first we will discuss the observations. You have 5 minutes. I will talk to you after 5 minutes. Please don't leave the meeting because this is very important.
Guys, have you noticed any kind of difference or it's exactly same? Net loss also decreases. Mm-hmm. And okay, एक काम करते हैं. I'll give you one whole day. कल पहले we will start discussing this problem and then we will continue other two problems. So on this note, guys, we can leave this meeting, but in the evening we will start with the economics. Is that clear to you? Yes, ma'am. Okay, chalo. Bye bye and good Bye. day. You, ma'am. Yes, good day.